Good morning, students. Today we are going to read the remaining part of our English grammar book. It's chapter number 7, Adjectives. Okay, students, so let's open page number 50. Today's topic is what is distributive adjectives? Distributive adjectives are not used with singular nouns. They include each, every, either, and neither, and are used to refer to members of a group as individuals. Just read some examples of distributive adjectives. First sentence, which is written in your book, is neither girl was selected for dance troupe. यानी किसी भी गर्ल को डांस ट्रुप के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया. So here neither word is distributive adjective. Second, each candidate was given a different test. हर एक कैंडिडेट ने अलग अलग टेस्ट दिए थे. ईच वर्ड यहाँ पर जो हाईलाइटेड है ब्लू वर्ड से रिटन है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है. एवरी वन ऑफ देम रिसीव्ड अ मेडल. हर एक ने मेडल रिसीव किया. तो यहाँ एवरी वन जो वर्ड है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. The adjectives neither, each, everyone, and either tell us about a thing or a person taken separately out of group or class. ये जो either, each, neither ये words हैं, ये ग्रुप में से किसी एक पर्सन या थिंग के बारे में सेपरेट होके उनको डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव करते हैं. Such words indicate which persons or things are taken one at a time. Remember, distributive adjective refer to each one of noun or a pronoun. Now students, let's read next topic, that is emphasizing adjectives. Emphasizing adjectives used to show strong feelings. ये strong feelings को show करने के लिए use होते हैं. The example of emphasizing adjectives are absolute, complete, pure, real, total. जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे के कुछ भी बात कहते हैं तो उस वर्ड का यूज़ जो इसके लिए किया जाता है जोर देने के लिए, उसको हम emphasizing adjective कहते हैं. Words that increase or decrease the effect of the noun they are modifying are called emphasizing adjectives. The sentences makes a complete sense even if they are not mentions. अगर हम emphasizing adjectives का use किसी sentence में नहीं भी करते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि हमारे sentence का जो sense है वो complete नहीं होगा, वो sense complete हो जाता है. For example, what he did was utter nonsense. उसने जो किया है वो बहुत नाइसेंस है. द अर्थक्वेक रिजल्टेड इन टोटल डिजास्टर. जो अर्थक्वेक हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ? टोटल डिजास्टर, यानी पूरी तरह से बर्बादी. जो टोटल वर्ड है वो किसको स्ट्रेस कर रहा है, किस पर जोर दे रहा है? टोटल वर्ड डिजास्टर कि किस तरह की बर्बादी हुई है ना. टोटल डिजास्टर मीन पूरी तरह से अर्थक्वेक में सब कुछ बर्बाद हो गया. So words such as pin drop, utter, such, very, absolute and total are some emphasizing adjectives. तो ये जो words हैं यहाँ पे जो examples दिए हुए हैं, pin drop किसके लिए यूज़ किया जाए? pin drop silence, यानी अगर पिन भी गिरे तो उसकी आवाज़ आए. तो हमने साइलेंस को स्ट्रेस करने के लिए पिन ड्रॉप वर्ड का जब हमने यूज़ किया तो ये क्या है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स है, क्योंकि ये जोर दे रहा है किसी वर्ड पर. Now let's move on page number 51. Now we are going to read degrees of comparisons. In order to show comparison between person or things, adjectives change their form. These form are known as the degrees of comparison. जब हम किसी दो persons में या things में comparison करते हैं तो adjective अपने form को change करते हैं. इन forms को क्या बोलते हैं हम? Degrees of comparison. Study the following examples. First sentence is Arun is a tall boy. There is no comparison with anyone. मतलब इस सेंटेंस में हम किसी के साथ अरुण का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. तो जो टॉल है ये कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है. सेकंड इज वरुण इज टॉलर देन अरुण. वरुण जो है वो अरुण से ज़्यादा टॉल है. देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू बॉयज़. यहाँ पे दो बॉयज़ के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. एक का नेम वरुण है और दूसरे का अरुण है. तो यहाँ पे हमने टॉलर जो वर्ड यूज़ किया है ये कौन सा डिग्री है? ये कंपैरेटिव डिग्री है. यानी हमने 3 फॉर्म्स पढ़े डिग्रीज के. फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड कंपैरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव डिग्री. तो यहाँ पे जो टॉलर है वो कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री. तरुण इज द टॉलेस्ट ऑफ द 3. यानी अब हमने यहाँ पे तरुण का 3 बॉयज़ में कंपैरिजन किया तो हमने क्या बोला कि वो सबसे ज़्यादा टॉल है. तो
देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन मोर देन 2 बॉयज। इस सेंटेंस में 2 से ज़्यादा बॉयज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे जो टॉलेस्ट है ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। इन द फर्स्ट सेंटेंस अरुण's क्वालिटी ऑफ बीइंग टॉल हैज नॉट बीन कंपेयर्ड टू एनीवन else. Therefore, tall is expressed in a positive degree. यानी फर्स्ट सेंटेंस में हमने अरुण की क्वालिटी जो कि टॉल है उसकी क्वालिटी उसको हमने किसी के साथ में कंपेयर नहीं किया। तो यहाँ पे टॉल जो है वो कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री है। इन द सेकंड सेंटेंस अरुण's क्वालिटी ऑफ बीइंग टॉल हैज बीन कंपेयर्ड विद वरुण's। इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू ऑफ देम, देयरफॉर टॉलर इज अ कंपैरेटिव डिग्री। सेकंड सेंटेंस में हमने अरुण की क्वालिटी जो क्या है? टॉल है, ठीक है, उसको हमने वरुण के साथ में कंपैरिजन किया है। यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ है, इसलिए जो टॉलर है वो कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि दो लोगों के कंपेयर करने के लिए यूज हुई है। इन द थर्ड सेंटेंस तरुण's क्वालिटी ऑफ बीइंग द टॉलेस्ट हैज बीन कंपेयर्ड विद 2 मोर बॉयज। अब थर्ड सेंटेंस में तरुण की जो क्वालिटी है टॉलेस्ट वो 2 से ज्यादा लोगों के बीच में यूज हुई है। यहाँ पे जो टॉलेस्ट है वो कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री आर फॉलोड बाय देन, यानी जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो उसमें हम देन का यूज उसके बाद में जरूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमित इज वाइजर देन अंकित। जैसे हमने अभी बोला अमित जो है वो अंकित से भी ज्यादा वाइज है, वो उससे दो लोगों में हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया अमित और अंकित। तो वाइजर जब हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या बोला? देन। ओके, तो देन के साथ में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। सम कंपैरेटिव डिग्रीज आर फॉलोड बाय 2। कुछ कंपैरेटिव डिग्रीज ऐसी भी होती हैं जो 2 से फॉलोड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अमित इज सुपीरियर टू अंकित। The superlative degrees should always be preceded by the। जो superlative degrees होती हैं उसके पहले हम the का यूज जरूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, यानी जो माउंट एवरेस्ट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाई है ना। तो जब हम 2 से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं या 2 से ज़्यादा पर्सन्स में कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा हम द का यूज़ करते हैं। एंड जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और उसके बाद में हमेशा दैन का यूज़ करते हैं। एंड पॉजिटिव डिग्री में हम किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन्स, यानी हम किस तरह से ये कंपैरिजन की जो डिग्रीज हैं उनका फॉर्मेशन कैसे करते हैं। मोस्ट एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्रीज बाय एडिंग ER एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बाय एडिंग EST टू पॉजिटिव डिग्रीज। जो ज़्यादातर एडजेक्टिव्स जो होते हैं उन पर जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं फॉर्म करते हैं तो हम ER का यूज़ करते हैं, एंड जब सुपरलेटिव डिग्री में उसको हम मॉडिफाई करते हैं तो EST का यूज़ करते हैं। जस्ट रीड सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ग्रेट, यहाँ पर एडजेक्टिव है जो पॉजिटिव फॉर्म में है, इसका कंपैरेटिव जब हम करेंगे तो ग्रेटर ER का हमने यूज किया ग्रेट स्पेलिंग के बाद, एंड ग्रेटेस्ट में हमने EST का यूज किया। फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, लाइक दैट। बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट। यहाँ पर सारे वर्ड्स में आप देख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में ER का यूज है एंड सुपरलेटिव डिग्री में EST का यूज है। When the positive degrees end in E, we make comparative and superlative by adding R and SR to positive degree। लेकिन जब adjective जो है वो E से अगर end हो रही है यानी spelling का जो last letter है वो E है तो हम क्या करेंगे उसके comparative degree के लिए सिर्फ R का यूज़ करेंगे एंड superlative degree के लिए हम ST का यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक नोबल, यहाँ पर नोबल में E लास्ट लेटर है तो हमने इसका कंपैरेटिव डिग्री के लिए ओनली R नोबलर एंड ओनली ST जो सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए ओनली ST का यूज़ किया है। ब्रेव, ये भी एंड किससे हो रहा है? ई लेटर से हो रहा है। तो जब ई लेटर से एंड हो रहा है देन वी हैव टू ऐड ओनली आर इन कंपैरेटिव डिग्री एंड ओनली एस टी इन सुपरलेटिव डिग्री। ब्रेवर ब्रेवेस्ट, वाइट वाइटर वाइटेस्ट, प्योर प्योरर प्योरेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, सेफ सेफर सेफेस्ट। तो अभी हमने इन सारे वर्ड्स में ओनली आर एंड एस टी का यूज़ किया क्योंकि इसमें ई ऑलरेडी पहले से ही इन वर्ड्स के एंड में है। ओके, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 52. Okay, when an adjectives end in Y and Y is changed to I before adding ER और EST। जब भी हमारा वर्ड जो है एडजेक्टिव का अगर Y से एंड हो रहा है तो उसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में कैसे हम फॉर्म करेंगे उसको, उसमें Y की प्लेस पर IER एंड IEST का यूज़ करेंगे।
ओके, कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम वाई को रिमूव करेंगे एंड आई ई आर का यूज करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए उसी वर्ड में लास्ट में वाई रिमूव करके आई ई एस टी का यूज करेंगे। जस्ट लाइक वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दियस्ट, यहाँ पे हमने वाई को रिमूव किया है और आई ई आर एंड आई ई एस टी का यूज किया है। इजी, इजियर, इजिएस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, नॉइजी, नॉइजियर, नॉइजिएस्ट। Next, when the positive degree ends with a consonant and it is preceded by a vowel, the last consonant is doubled and er and est are added. जब भी हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव जो वर्ड है वो अगर कांस्टेंट लेटर से फिनिश हो रहा है, एंड में उसमें कांस्टेंट लेटर आ रहा है और बट उसके जस्ट पीछे वाला लेटर है ना, जैसे यहाँ पे एस ए डी वर्ड है, यहाँ पर डी कॉन्सोनेंट है बट उसके जस्ट पीछे वाला लेटर वॉवल है ना। अगर वॉवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ को छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे सैड है जो है, इसमें डी कॉन्सोनेंट है जो कि एंड में आ रहा है, और ए इसके पहले वाला लेटर वॉवल है, तो हमें क्या करना है, उसके जो लास्ट वाला लेटर है उसको हमें डबल करना पड़ेगा। जस्ट लाइक सैड, सैडर, सैडेस्ट, हमने डी को डबल यूज किया। बिग, बिगर, बिगेस्ट, हमने बिगर में भी डबल जी क्यों यूज की, क्योंकि जी के पहले वाला जो पॉजिटिव में हमारा वर्ड दिख रहा है वो आई आ रहा है और आई एक वॉवल है। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, यहाँ पर भी जी के पहले वाला वर्ड ओ जो कि वॉवल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर double T, okay, in comparative degree, hotter and hottest, red, redder, reddest. By adding more and most to comparative and superlative degrees of two or more than two syllables. Careful, more careful, most careful, यहाँ पर कुछ words इस तरह के हैं जिसमें हम more and most का use करके comparative and superlative में उनको form कर सकते हैं। Faithful, more faithful, most faithful, helpful, more helpful and most helpful. So you have to read all these words which are formed by adding more and most. Okay, there are some adjectives that form their comparative and superlative degrees in an unusual way by using a new word. लेकिन कुछ words ऐसे होते हैं जिसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव के लिए हमें उसमें कुछ नया वर्ड ऐड करना पड़ता है। जस्ट लाइक अप, अपर, अपमोस्ट, लेट, लेटर, लीस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, इन, इनर, इनरमोस्ट, ओल्ड, एल्डर एंड एल्डेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। ये आपको वर्ड सारे लर्न करने पड़ेंगे। Okay, so what you have to do after watching this video properly, what you have to do, you have to read the chapter properly, all the topics, okay, and try to complete your book exercise. Okay, and tomorrow I will send the PDF of this chapter. Stay safe, stay healthy and keep learning.